Alright, KG1. So let's start our day. And today we are learning some very interesting things. Alright. So let's start our today's oral. Okay. So today we are learning the word opposites. And what do you think? Which word opposite we are going to learn? There is a teddy bear and a stone, rock. I will tell you. Okay. हम जब टेडी बेयर को अपने हाथों में लेते हैं तो वो कितना फ्लफी फ्लफी सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, नरम नरम सा होता है, प्यारा प्यारा सा, है ना? यस. तो जो चीजें बहुत नरम नरम सी होती हैं, बहुत दबाने से बिल्कुल दब जाती हैं, रुई की तरह होती हैं बिल्कुल, तो हम उन चीजों को क्या कहते हैं? सॉफ्ट. व्हाट इट कुड बी? सॉफ्ट. और जिस तरह से पत्थर होते हैं, जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमें पत्थर दिखते हैं ना रोड पर. यस. लेकिन अगर हम पत्थर को प्रेस करें, दबाएं, तो वो दब जाता है? नो, वो प्रेस नहीं होता. तो इसीलिए वो बहुत सख्त होता है, वो दबता नहीं है, बहुत सख्त होता है. तो जब वो जो चीजें सख्त होती हैं, हम उनके लिए क्या कहते हैं? हार्ड. हम क्या कहते हैं? हार्ड. सॉफ्ट, हार्ड. सॉफ्ट, hard. So today's our opposite is soft, hard. Soft means नरम, जैसे हमारे पिलो होते हैं, तकिए, राइट? हम जब सोते हैं, हम अपना सर पिलो पर रखते हैं तो वो कितना नरम सा होता है बिल्कुल, राइट? तो नरम चीजों को जो आराम से दब जाती हैं, रुई की तरह से होती हैं बिल्कुल, तो वी विल कॉल इट सॉफ्ट. लेकिन जैसे ये आप बॉय को देख रहे हैं कि उसके सामने पत्थर पड़ा हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, यानी कि वो दबाएगा तो वो दबेगा भी नहीं, वो इतना हार्ड है. यस. तो और दूसरे बॉय ने पिलो को कितना इजीली, कितना सॉफ्ट सा है वो, कि उसे इतनी आराम से कैरी किया हुआ है, दबाया हुआ है, पकड़ा हुआ है, बिकॉज इट इज सॉफ्ट. ओके. सॉफ्ट, हार्ड. सॉफ्ट, हार्ड. ऑलराइट. सो there is another picture of a girl and a boy, as you seeing on your screen that the girl is sitting on the pillow. गर्ल जो है वो पिलो पे बैठी हुई है, वो कितना सॉफ्ट सा है कि उसके बैठने से वो प्रेस हो गया, दब गया. लेकिन बॉय जिस पे बैठा हुआ है वो ना प्रेस हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, बिकॉज इट इज हार्ड. यस. सो जो चीजें आराम से दब जाती हैं, रुई की तरह नरम होती हैं, we will call it soft, and the other one is hard. Okay, so let's revise it once. Let's revise it again. So, which one is hard? Tell me. Hard, soft. What is the opposite of hard? Soft. Very good. What is the opposite of hard? Soft. Hard means सख्त. Yes, hard means सख्त, जिसको हम दबा नहीं सकते, प्रेस नहीं कर सकते. और soft means जो इजीली दब जाता है, बहुत नरम सा होता है, रुई की तरह से होता है, कॉटन की तरह से. ठीक है? ओके. द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट. यस. सो टेल मी विच वन इज हार्ड एंड विच वन इज सॉफ्ट. दिस इज हार्ड एंड दिस इज सॉफ्ट.
What is the opposite of hard? Soft. What is the opposite of hard? Soft. And the last picture is, yes, this is another picture of hard and soft. This is hard and this is soft. Okay. So what is the opposite of hard? Soft. Very good. Hard, soft. Okay. So learn it, make a video of it and send it to me. Okay, now after learn the word opposite, hard and soft, now we are starting our new theme. Last time we have completed our theme, that was discussion of means of communication. Alright, I hope that we have learned all the 5 questions very well. So let's move on to the new theme, that is transport. Yes, we are starting our new theme, that is transport. Do you know what is the meaning of transport? Okay, so you are going to know what is the meaning of transport by learn the first question. हम अपना first question learn करेंगे और हमें पता चल जाएगा that what is the meaning of transport. Okay. First question is, what does transport means? वो हमसे पूछ रहे हैं ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है. तो the answer is, transport is the source of moving one place to another place. Okay, आपने पहले मुझे listen किया. Now you have to learn with me loudly. Transport is the source of moving one place to another place. Learn it once again with me. Transport is the source of moving one place to another place. इसका क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट एक वो सोर्स है जिसके जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. As you are seeing on your screen that there is an aeroplane, boat, rocket, helicopter, motorcycle, car, train, ship. These all are the things जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. ओके, हम स्कूल आते हैं, राइट? तो जिनका घर करीब होता है वो तो बाय वॉक आ जाते हैं, पैदल, है ना? बट जिनका घर दूर होता है वो कैसे आता है? बाइक पे आते हैं कुछ बच्चे, है ना? कुछ बच्चे वैन में आते हैं. तो वो ये कौन सी चीजें हैं जो हमें हमारे घर से किसी दूसरी जगह लेकर जाते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट. जिसके अंदर बाइक भी हो सकती है. हम बाइक पे बैठ के भी हम अपने घर से पार्क जा सकते हैं, है ना? हम शॉपिंग करने जा सकते हैं. हम स्कूल से अपने घर जा सकते हैं, राइट? एरोप्लेन में हम बैठते हैं. वी हैव टू गो टू लाहौर. तो हम कराची से एरोप्लेन में बैठेंगे और एरोप्लेन के थ्रू हम लाहौर पहुंच जाएंगे. हम खुद से उड़ के तो नहीं जा सकते ना, राइट? तो ये वो चीजें हैं जो हमें अपनी जगह से कहीं और जाने के लिए यूज होती हैं. और इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट. व्हाट आर ऑल दीज? ट्रांसपोर्ट. ये बहुत सारी होती हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जो आपको दिखा रही हूँ सिर्फ वो ही होती हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी, लाइक दिस, बहुत सारी होती हैं. जैसे कि शिप, बाइक, एरोप्लेन, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, एयर बलून और जो है कार, वैन, पैंजर, शिप, टैक्सी, ट्रेन, submarine. These all are the different types of transport.
ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं और जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What does transport means? Transport is the source of moving one place to another place. Read it again. Transport is the source of moving one place to another place. Alright, KG1, so you have to learn all the today's oral. Learn it very carefully, make your video and send it to me.